Assalamu alaikum, YouTube viewers, and good afternoon to all. We will start this seminar in 5 minutes. Stay tuned. Yes, Assalamu alaikum, all of you. Assalamu alaikum, all of you. So, first of all, welcome to our first seminar on web designing for the students of Khan Campus, Solapur, and Asadullah Khan Campus, Mumra. We have been organizing various seminars since beginning, and this one is the part of our career development cell of Dr. Sidullah Khan English Medium School Engineer College, Solapur. On behalf of Career Development Cell, we conduct various job-oriented courses for students. As a part of this department, this cell, we organize various seminars free of cost for the students of other colleges, other institutions also. So today we are going to start a free seminar
on web designing, on website design. In upcoming 40-45 minutes of this seminar, you will be learning the basics of websites, how to create a website, what are the basic concepts of different websites, how to run them, how to create them, and most important, what kind of job opportunities you will have if you get good skills, if you get good hands on website, on website development. So to start the seminar with, I first of all I would like to welcome all of you for joining this in this rainy afternoon on 14th October 2020, Wednesday. I would like to welcome the viewers on YouTube also, that they have joined from YouTube, and viewers from my Zoom meeting also. So let's begin with today's session of website design. Okay, if any problem with the participants, they can. Okay, Yasmin Sheikh, do you have any problem? Any questions? Yasmin Sheikh. Okay. Yes, Yasmin Sheikh. Am I audible to all on Zoom meeting? Zoom पे जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनको मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, गुड गुड. थंब दिखाइएगा अगर आवाज आ रही है तो. यू कैन शो द थंब. ओके, थंब का ऑप्शन है वहां पे, थंब दिखाइएगा सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर लिसनिंग टू मी. ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, थैंक यू. Can you see my screen on Zoom? On Zoom meeting? Can you see my screen? Raise your hand or give me a thumb. On Zoom meeting, raise your hand. Zoom पे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? Okay. Raise your hands. Okay, good. All right, so let's begin with today's session on seminar on web designing. All right. As you know, as you are well, as you very well know me, my students from Asadullah Khan campus, Solapur, and from Umrah also. My name is Aftab Mullah. I am a Chief Executive Officer of Khan campus, Solapur, and also teach English, communication skills, and website development, mobile application development. So these all trainings I conduct for my students of at Dr. Asadullah Khan English Medium School and Junior College. So basically, the purpose of this training, of this website development training, website designing training, is very clear. By the way, it's very important for me and for all of you to have some skills with you, right?
as I know that you are learning 12th, you are learning 11th science, commerce, or any other faculty in your education, or maybe some people joined, or some people watching online on YouTube, they have been currently working somewhere. So, what is the current requirement in the current job market? Is along with your qualification, along with your graduation, along with your degree, you must possess some skills, some job oriented skills, the skills which can give you jobs easily because you have the degrees of respective departments of the respective faculties, and you have also you have the qualification, the certification of these skills. So website designing and website development is one of those skills where you have to where you can try your luck, or you can try yourself by learning website designing, website development. And if you see the opportunities, if you see that okay, you are doing really well, and if the website designing increases of your interest in this field, then definitely that will become a life changing profession for you. अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर अगर आपका आप समझ लीजिए कि आप मास्टरी हासिल करते हैं, तो इसके अंदर आपका करियर बनाना, इसके अंदर एक प्रोफेशनल करियर बनाना आपके लिए पॉसिबल है, और एक अच्छा करियर जो है वो आप इसके अंदर बना सकते हैं, राइट। हम हमेशा सोचते हैं और हम हमेशा हमारा एम यही रहता है डॉक्टर असदुल्ला खान कॉलेज के अंदर कि आपको जो है वो एजुकेशन के अलावा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस रहे, या आपके 10th के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशंस रहे, आपके सीईटी के प्रिपरेशंस रहे, उसके अलावा आपको जो है वो और एक्स्ट्रा एडिशनल स्किल्स दिया जाए, जिसकी आपको इस दौर में, इस जमाने में जरूरत है। तो उसी का हिस्सा है कि हम असदुल्ला खान सोलापुर कैंपस में और ऑनलाइन तरीके से मुमरा कैंपस के लिए भी ये सारी कोर्सेज, आपका वेबसाइट डिजाइनिंग रहे, आपका मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट रहे, आपका टैली रहे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग रहे, ये सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे मुहैया करा रहे हैं, हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। So what is actually a website? Let's start with the introduction, by the way. So website is a collection of web pages and related content that is identified by a common domain name and published on at least one web server. जैसे कि डेफिनेशन आपको बता रही है वेबसाइट की क्या है, जैसे आप देख रहे कि रेड से जो हाईलाइट किया गया हुआ एरिया है ना, वेब पेजेस, डोमेन नेम and web servers. So these are three main parts of a website. First of all, you must have a web page. You must have web pages for your website. Then you must have a domain name, and then you must have a web server. अब ये तीनों चीजें क्या है और इसको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ये हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में बताएंगे। वेबसाइट्स के एग्जांपल आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यू नो द वेबसाइट्स वेरी वेल, लाइक गूगल है, अमेजॉन है, और उसके अलावा देयर आर लाइक 1.7 बिलियन वेबसाइट्स। अगर आपके इंडियन लैंग्वेज में बताया जाए तो 174 करोड़ ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल ऑन एंटायर इंटरनेट। इंटरनेट जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। इंटरनेट के ऊपर जो है वो आपको आज के दौर में 174 करोड़ से ज्यादा, 1.74 बिलियन से ज्यादा जो है वो वेबसाइट्स मिलेंगे, अलग अलग टॉपिक के ऊपर, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लेके बनाए गए हुए वेबसाइट्स आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर मिलेंगे। सो एग्जैक्टली इतने सारे वेबसाइट्स जब आप देख रहे हो, आप मतलब इतने सारे वेबसाइट का एक्सेस आपको इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, बस आपको सर्च करना है गूगल पे, तो आपको जो है वो अगर आप समझ लीजिए कि अगर आपने गौर किया रहेगा, जब भी आप गूगल पे एक कीवर्ड सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट स्कूल इन सोलापुर, है ना, बेस्ट स्कूल इन सोलापुर, अगर आप इसको सर्च करते हो तो आपको स्कूल की लिस्ट दिखाता है गूगल के ऊपर, राइट। और उस लिस्ट के ऊपर आपको एक मैसेज दिखाता है कि नंबर ऑफ थाउजेंड्स और नंबर ऑफ मिलियन रिजल्ट्स इन 2 seconds, in 3 seconds, in 4 seconds।
मतलब जितने मिलियन रिजल्ट्स वहां पे दिखा रहा है वो है उतने सारे वेब पेजेस अवेलेबल है वेबसाइट इंटरनेट के ऊपर उतने सारे वेब पेजेस अवेलेबल है उस स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, मतलब कि बेस्ट स्कूल ऑफ सोलापुर इस टॉपिक को लेके या फिर बेस्ट स्कूल इस दो वर्ड्स को लेके इंटरनेट के ऊपर लगभग हजारों लाखों वेब पेजेस वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो आप इसका मतलब एक्सपांशन समझ सकते हो, आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना बड़ा मार्केट है यहाँ पे। बेसिकली अगर आप मेरे व्यू पॉइंट से देखेंगे तो इट इज लाइक अ मार्केट फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट आपको पैसे के अलावा आपके ओके जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट अ सेकंड। All right, from Zoom meeting participants, can I see my screen? Give me a thumb. From Zoom meeting, give me a thumb. Thumb दिखाइए, thumb please. Okay, Samir Mullah, Mahek Sayed, okay. These people can see my screen. Khan Sufyan, yes. You can see my screen. All right. Okay, चलो. All right, let's move forward. So मैं आपको बता रहा था कि वेबसाइट इंडस्ट्री का या फिर समझ लीजिए आपके इंटरनेट इंडस्ट्री का जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कि अनलिमिटेड है। और जस्ट अ सेकंड। इसका एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, मतलब आपके पास उतने ही करियर अपॉर्चुनिटीज है, उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जितना लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट है आपका वेबसाइट डिजाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट इंडस्ट्री का, राइट। सो व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट? तो ये दो चीजें जो है वो आपको हमेशा कंफ्यूज कर सकती है आने वाले आपके कुछ वक्त में। जैसे जैसे हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो आप थोड़ा सा इसके बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। सो दीज आर एक्चुअली टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, एक ही सिक्के के दो बाजू, वेबसाइट डिजाइनिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। सो व्हाट आर एग्जैक्टली द पिलर्स, who are the website developers and or website designers? तो ये website developers और website designers exactly है कौन? The people who create, design and maintain websites. Basically website designers और website developers वो लोग हैं जो websites को create करते हैं, website को design करते हैं और website को maintain भी करते हैं. So let's see who are the pillars of web designing business. First of all, there is web author. Web author, right? Web author means, as you know, that there are authors, writers of different like novels, dramas, and everything, right? There are articles. So people who write, we call them authors, right? So the people who write the websites, people who write the content of the websites, वो websites की information fill जो करते हैं, fill the websites with useful and SEO friendly content. SEO क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बारे में हम आने वाले कुछ सेशंस में बात करेंगे इंशाल्लाह, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स रहेगा उसके अंदर हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे SEO। तो आपको वेब ऑथर्स का जो पहला रोल है, जो पहला पिलर है आपके वेबसाइट डिजाइनिंग इंडस्ट्री का, वो है आपके वेब ऑथर्स, जो वेबसाइट्स को बनाते हैं, मतलब कि वेबसाइट को राइट करते हैं, लिखते हैं। वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट होना चाहिए वो ये लोग लिखते हैं, वेबसाइट ऑथर या वेब ऑथर्स। उसके बाद है आपके वेबसाइट डिजाइनर्स, डिजाइन्स द लुक ऑफ द वेबसाइट। अगर आपने वेबसाइट देखे आज तक के, मतलब कि कोई स्कॉलरशिप की वेबसाइट देखी है, या फिर आपके स्कूल की कॉलेज की वेबसाइट देखी है, या फिर आप देखेंगे फेसबुक आप देखते हो, या फिर आपकी और गूगल देखते हो, तो इस गूगल
फेसबुक रहे, गूगल रहे, इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन फिल की रहती है, मतलब कि ऊपर आपको मेनू दिख रहा है, साइड में आपको जो है लेफ्ट साइड में कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, फिर फोटोज दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रहे हैं, ये सारा जो लुक है, ये लुक आपका बनाते हैं वेबसाइट डिजाइनर्स। वेबसाइट डेवलपर्स कौन है? who make the design possible with the help of coding skills। अभी मेरी लैंग्वेज आपको, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ या फिर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आपसे, आपको समझ में आ रही है बराबर, बिकॉज यू नो द लैंग्वेज वेरी वेल। मगर कंप्यूटर को और आपके जो वेबसाइट का जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल आपके सर्वर्स रहे, वेब सर्वर्स है, होस्टिंग सर्वर्स है, डीएनएस सर्वर्स है, इन सर्वर्स को जो है वो आपकी ये वाली लैंग्वेज नहीं आती, राइट। ए वाली लैंग्वेज जो डे टू डे लैंग्वेज नहीं आती, इनको जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कलर के लिए एक कोड है, एक कलर को इस तरीके से दिखाना है, या इस लाइन को इस तरीके से जो है वो यहाँ पे दिखाना है, एक कंटेंट को अलाइनमेंट लेफ्ट लेना है, राइट लेना है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कोडिंग करके आपको इसको बतानी पड़ती है आपके वेब सर्वर्स को। तो ये जो काम रहता है कोडिंग का, ये करते हैं आपके वेबसाइट डेवलपर्स, वेब डेवलपर्स। और जो लास्ट में आते हैं वो बैकएंड मेंटेनेंस वाले लोग, मतलब एक बार जब आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई तो उसको मेंटेन करना, उसको उसका नेटवर्किंग चेक करना, उसके सर्वर्स का ख्याल रखना, और उसके ऊपर जो भी मतलब के जो भी एरर्स कभी कभी आते रहते हैं, बग्स रहते हैं, वायरसेस रहते हैं, इन सारों से जो प्रोटेक्शन देना रहता है एक वेबसाइट को, ये काम करते हैं बैकएंड मेंटेनेंस वाले लोग। बैकएंड मेंटेनेंस में आपके बेसिकली ये सारे लोग आ जाते हैं, मतलब उसके अंदर वेबसाइट ऑथर्स भी आते हैं, क्योंकि अगर समझो मैंने आज एक ब्लॉग पब्लिश किया है वेबसाइट के ऊपर, अगर मेरे को उसको और अपडेट करना है या नया ब्लॉग लेके आना है, तो अगेन आई विल नीड अ वेबसाइट ऑथर। अगर मेरे को डिजाइन चेंज करना है वेबसाइट का किसी एक पेज का, तो अगेन आई विल नीड द वेबसाइट डिजाइनर। अगर वेबसाइट डेवलपर मेरे को कुछ बग्स आ रहे हैं, कोई वायरसेस आ रहे हैं, तो उसको निकालना है, तो आई विल नीड द वेबसाइट डेवलपर एट दैट टाइम। सो बैकएंड मेंटेनेंस का जो काम रहता है वो लाइफ टाइम वर्क रहता है, इसको वेबसाइट एक बार बनने के बाद उसका मेंटेनेंस भी उतना ही जरूरी रहता है। देन वेबसाइट क्रिएशन का प्रोसेस क्या है बेसिकली, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको पहले क्रिएशन के बारे में बता रहा हूँ और फिर कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा मैं उल्टा जा रहा हूँ, ठीक है ना, रिवर्स एंगल में जा रहा हूँ, राइट। तो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ द वेबसाइट, स्टेप वन रहता है कंटेंट क्रिएशन का। स्टेप वन है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन मतलब कि जो भी आपका वेबसाइट का कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, जो भी आर्टिकल्स है, जो भी टैगलाइंस है, डिटेल्स हैं आपके प्रोडक्ट के, कोर्सेज के, जो भी डिटेल्स रहेंगे उसका पूरा इंफॉर्मेशन बनना, वेब ऑथर जो है वो इसको क्रिएट करता है, कंटेंट क्रिएशन। नेक्स्ट स्टेप रहता है वेब पेज को डिजाइन करना। अगर आप एक वेबसाइट देखोगे तो उस वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे पेजेस रहते हैं, एक पेज नहीं रहता है। जैसे आप किसी एक जनरल वेबसाइट पे जाओ तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ऊपर टैब्स हैं, होम टैब है, उसके बाद जो है आपका अबाउट अस का टैब रहता है। हाँ, मैं आपको एक विंडो शेयर करता हूँ, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। मैं आपको एक सैंपल वेबसाइट दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। ऑलराइट, सभी को दिख रही है स्क्रीन मेरी? थोड़ा रेज हैंड करो। पेज दिख रहा है आपको स्कूल का? यस, ओके, गुड। सो जैसे आप देखेंगे कि बेसिक बहुत सारे पेजेस रहते हैं वेबसाइट के ऊपर, राइट। जैसे कि होम है, अबाउट अस है, एकेडमिक्स है, एडमिशन है, इवेंट्स है, गैलरी है, कॉन्टैक्ट्स है। तो ये अलग अलग पेजेस है यहाँ पे, और इसके भी और जो है वो सब पेजेस रहते हैं। हाँ, इसके सब पेजेस रहते हैं, राइट। सो इन सब पेजेस और प्लस ये पेजेस पूरे मिलकर जो है आपकी वेबसाइट बनती है।
और अनगिनत ऐसे पेजेस रहते हैं जो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई नहीं देते, बट अंडर जो है वो ये पेजेस रहते हैं सारे, राइट। तो इन सारे पेजेस को जो है वो आपको मेंटेन करना रहता है, बनाना रहता है, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड। अभी दिख रही है मेरी स्क्रीन सभी को, राइट। ओके, सो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अलग अलग पेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए अब ये सब पेजेस है, एनुअल फेस्टिवल वगैरह वगैरह, है ना, ये सारे। अब यहाँ पे 2 कैंपसेस के अलग अलग पेजेस और बनाए हैं, राइट। मुंब्रा का है, यहाँ पे सोलापुर है, राइट, 2 अलग अलग पेजेस है। तो इस तरीके से इसको बनाते हैं, राइट। तो ये सारे हो गए आपके वेब पेजेस। ओके, कैन यू सी माय स्क्रीन, द प्रोसेस पे सब लोग दिख रही है सबको प्रोसेस? रेज योर हैंड्स। ओके, चलो गुड। ऑलराइट, सो वेबसाइट डिजाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा होगा, पेजेस बनाना। उसके बाद है स्टेप 3 में वेबसाइट डेवलपमेंट करना, मतलब जो भी मैंने डिजाइन दिया है बना के उसको कोडिंग में कन्वर्ट करके उसके अलग अलग जो लैंग्वेजेस हैं, जैसे आपका है HTML, CSS, उसके बारे में मैं बाद में कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। वेबसाइट डेवलपमेंट का काम 3rd स्टेज पे रहता है। और उसके बाद स्टेप 4th है उसका मेंटेनेंस, ठीक है ना, मतलब नेटवर्किंग देखना, सर्वर को हैंडल करना, पेजेस को करना, हाँ। उसके बाद पेजेस को जो है वो आपके सर्वर पे स्टोर करना, ये बहुत सारी चीजें जो है वो वेबसाइट मेंटेनेंस के अंदर आती है, जो लास्ट का स्टेज है। आपको इसको हमेशा काम करना पड़ता है इसके ऊपर, राइट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, अभी यहाँ से जो है वो आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आगे आने वाला पार्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे क्या है। पहला तो है डोमेन नेम, राइट। फर्स्ट है आपका डोमेन नेम, राइट। सो डोमेन नेम क्या होता है कि आपके वेबसाइट की आइडेंटिटी होती है ना, जैसे आपका नाम है आपकी आइडेंटिटी है, बराबर है। तो वैसे ही आपकी वेबसाइट की आइडेंटिटी रहती है आपका डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। फॉर एग्जांपल जैसे कि है www.google.com, facebook.com, amazon.com, या फिर asdullah.khan.school.org, है ना। अब ये www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, इसका है शॉर्ट फॉर्म है www, वर्ल्ड वाइड वेब, राइट। और उसके बाद इसके आपका नाम आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे है गूगल, और उसके बाद आ रहा है .com, ये है डोमेन एलियस। डोमेन एलियस क्या रहता है कि अभी जैसे आप देखेंगे कि .com है, यहाँ पे .org है, तो ऐसे अलग अलग रजिस्ट्रार्स है डोमेन्स के। जैसे कि अभी एक कॉम का होता है कमर्शियल, कॉम का है क्या मीनिंग, क्या है? कमर्शियल है। ORG का क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। कभी कभी रहता है .google .in रहता है, मतलब इंडिया। .us रहता है, .uk रहता है, राइट। अलग अलग कंट्रीज के नाम से रहते हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के नाम से भी रहते हैं, .asia, राइट। उसके बाद अगर आपने यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट देखा होगा इंडिया के अंदर, तो उसका रहता है .ac.in रहता है, राइट, ac.in रहता है। तो ये अलग अलग डोमेन नेम्स है, बराबर है, अलग अलग डोमेन नेम्स है। और इन अलग अलग डोमेन नेम्स के अलग अलग प्राइजेस रहते हैं, इसके अलग अलग कॉस्टिंग रहता है, ठीक है ना, डोमेन नेम।
अच्छा, कोई क्वेश्चन है? इस्माइल खान, इस्माइल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। ओके, थैंक यू। डोमेन नेम, राइट। उसके बाद अभी डोमेन नेम देता कौन है आपको? आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कौन करता है? तो डोमेन नेम प्रोवाइडर्स जो है वो इनको रजिस्ट्रार्स बोलते हैं, रजिस्ट्रार्स जो डोमेन नेम को प्रोवाइड करते हैं, जिनके सर्वर्स के ऊपर इन डोमेन को आप सेव करके, आप स्टोर करके आप रख सकते हैं, राइट। जैसे कि आपका ये गोडैडी फेमस है, वर्ल्ड वाइड के अंदर जो है वो गोडैडी फेमस है। उसके बाद बिग रॉक है, इंडिया के अंदर काफी फेमस है। होस्टिंजर नाम से एक है, राइट। उसके बाद ब्लू होस्ट बोल के एक फेमस, बहुत ही फेमस है यूएस के अंदर और यूके के अंदर, ब्लू होस्ट नाम से एक प्रोवाइडर है। तो ये सारे जो है वो डोमेन प्रोवाइडर्स है, और ये डोमेन प्रोवाइडर के साथ साथ इसको होस्टिंग की सर्विस भी देते हैं। अब होस्टिंग क्या है, इसको हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। जैसे आप, मैंने बताया आपको अलग अलग टाइप्स के डोमेन एलियस रहते हैं, जैसे कि है डॉट न्यूज, डॉट म्यूजिक, डॉट वेब, डॉट कॉम, डॉट मेल, है ना। ये अलग अलग टाइप्स के डोमेन है, और हर एक डोमेन की प्राइसिंग अलग अलग रहती है। अगर आप डॉट कॉम लेने जाओगे तो आपको जो है वो महंगा पड़ेगा, डॉट कॉम आपको महंगा पड़ेगा, है ना। उसके अगर कंपेयर टू डॉट कॉम देखेंगे तो डॉट शॉप है, या फिर डॉट INC है, डॉट ब्लॉग है ना, डॉट ऑनलाइन रहता है कभी कभी। तो ये सारे सस्ते में आपको मिल जाते हैं। इसका जो है वो ईयरली पैकेज रहता है। डॉट डोमेन नेम्स का क्या है, ईयरली पैकेज रहता है। आप एक डोमेन नेम को जो है वो 10 साल के लिए तक रजिस्टर करा सकते हैं आपके नाम से, ठीक है ना। 10 साल के लिए तक आप रजिस्टर करा सकते हैं। लाइफ टाइम के लिए आपका कोई भी डोमेन नेम रजिस्टर नहीं होता है। लाइफ टाइम के लिए डोमेन नेम रजिस्टर नहीं होता है, आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। आप मैक्सिमम 10 साल तक के लिए डोमेन नेम्स को रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद में आपको और एक बार उसको रिन्यू करना पड़ता है, राइट। सो डोमेन नेम्स, दिस इज, इट इज एक्चुअली योर आइडेंटिटी ऑफ योर वेबसाइट, राइट। उसके बाद है आपका उसके बाद है होस्टिंग, राइट। उसके बाद है होस्टिंग। अभी होस्टिंग जो है ये आपका सर्वर स्पेस है, ठीक है ना। मतलब कि आप जो भी वेबसाइट बनाएंगे, आप जो भी वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जो भी फाइल्स बनाएंगे, वेब पेजेस बनाएंगे, जो भी फॉर्मेट में बनाएंगे, आपके वीडियोस है, फोटोज है ना, ये सारी फाइल्स को सेव करने के लिए आपको एक जगह की जरूरत है, जो आपको होस्टिंग के अंडर प्रोवाइड की जाती है। अब ये प्रोवाइड कौन करता है? सेम पीपल, गोडैडी, बिग रॉक, होस्टिंजर्स, ब्लू होस्ट जैसे जो लोग हैं, ये आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं, आपको मेमोरी प्रोवाइड करते हैं उनके सर्वर्स के ऊपर। अब सर्वर्स क्या है, तो देख रहे हैं आपके सर्वर्स इज लाइक कंप्यूटर्स, थोड़ा सा आपके लैपटॉप और आपके डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर्स नहीं, बल्कि थोड़े ज्यादा बड़े रहते हैं। जैसे आप फोटो में देख सकते हैं कि ये सर्वर्स है, इनके ऊपर डेटा आता जाता रहता है, प्रोसेसिंग होता रहता है, राइट। सो ये जो प्रोवाइडर्स है, गोडैडी, बिगरॉक वगैरह, तो इनके पास इस तरीके के सर्वर्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। इनके पास ऐसे सर्वर्स अवेलेबल रहते हैं जहां पर ये आपको मंथली आपसे चार्ज लेते हैं या ईयरली आपसे चार्ज लेते हैं, और आपका जो डेटा है वो उनके यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, राइट। तो इस तरह से आप आपकी जो पूरी वेबसाइट है इन सर्वर्स के ऊपर स्टोर कर सकते हो, और फिर वहां से आप आपकी वेबसाइट को पब्लिश कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से इसको करते हैं, इसको बोलते हैं होस्टिंग। अब तीसरी चीज है आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो है वेबसाइट बिल्डर्स। वेबसाइट बिल्डर्स जो वेबसाइट बिल्ड करेंगे वो, अब इसके अंदर भी दो कैटेगरीज है। आप एग्जैक्टली बनाना कैसे वेबसाइट को, मतलब वेब पेजेस को कैसे बनाना है। नंबर ऑफ वेब पेजेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वेबसाइट। आप अलग अलग वेब पेजेस बना के एक साथ कंपाइल करेंगे तो आपकी वेबसाइट बन जाएगी, राइट। इट इज अ बेसिक आइडिया। और आपको हर एक पेज जो है वो दूसरे पेज के साथ लिंक करना पड़ता है। लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, राइट। सो पहली चीज है वेबसाइट बिल्डर्स के अंदर, वो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड। मतलब कि आप कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और उसके ऊपर आपके वेबसाइट को डेवलप करो, वेबसाइट को बनाओ। इसके लिए दो बेसिकली फेमस सॉफ्टवेयर है, जो है एडोब ड्रीम वीवर और फ्लैश, एडोब फ्लैश। उसके साथ में आपको जो है वो कोडिंग स्किल्स आपके पास होना जरूरी है, आपको कोडिंग का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसको बोलते हैं HTML। मतलब आपके सारे जो वेब पेजेस है वो HTML फॉर्मेट में ही बनते हैं, एक्सक्लूसिवली HTML फॉर्मेट में बनते हैं। सारे वेबसाइट जो है आपको HTML फॉर्मेट में दिखेंगे, राइट। सो दिस इज अ ग्लोबल कोडिंग लैंग्वेज फॉर
वेबसाइट्स HTML, उसके बाद है CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसको बोला जाता है CSS को, राइट। मतलब आप जो भी कलर्स ऐड करोगे वेबसाइट के ऊपर, जो भी आपका फॉर्मेटिंग करोगे, फॉन्ट्स वगैरह ऐड करोगे, ये सारी चीजें जो है वो इसका कोडिंग जो रहेगा, इसका प्रोग्रामिंग जो रहेगा आपको CSS में करना पड़ेगा। उसके बाद है जावा, थोड़ा हायर लेवल का, एडवांस लेवल का प्रोग्रामिंग रहता है इसके अंदर। और अगर आपको डेटाबेसेस बनाना है, मतलब समझ लीजिए कि आपको आपके स्कूल की वेबसाइट बनाना है जहां पर हर एक लोग लॉगिन करेंगे, उनका अकाउंट बनेगा जैसे कि फेसबुक पे रहता है वैसा, तो आपको जो है वो PHP का नॉलेज होना जरूरी है, इसके अंदर कोडिंग आपको आना जरूरी है, राइट। सो दीज आर दी सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट बिल्डर्स। और दूसरे रहते हैं वेबसाइट बेस्ड, वेब बेस्ड, ऑनलाइन, ठीक है ना। मतलब अगर आपके पास कोई भी कोडिंग लैंग्वेज अवेलेबल नहीं है, आपने कोई भी कोडिंग नहीं सीखा है, फिर भी आप जो है वो बढ़िया से बढ़िया वेबसाइट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेब बेस्ड VCVIC, इसको बोला जाता है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, WYSYSIWIG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, वेबसाइट बिल्डर्स। इसके लिए कोडिंग की जरूरत होती है, बट लिमिटेड कोडिंग की जरूरत होती है, राइट। आपको मतलब एडवांस लेवल पे कोडिंग होना जरूरी नहीं है, लिमिटेड कोडिंग स्किल्स जरूरत रहती है। उसके प्रोवाइडर्स है जैसे कि है wix.com, squarespace.com, weebly.com, ऐसे जो वेबसाइट्स है यहाँ पे जो है वो आप विदाउट एनी कोडिंग लैंग्वेज वेबसाइट्स बना सकते हो। बट थोड़ा सा ये इस सॉफ्टवेयर बेस्ड वेबसाइट बिल्डर से compared to software based website builders, web based website builders are highly costly. They will not get, you will not get it in cheaper price, थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग यहाँ पे ज्यादा जाएगा अगर आपको वेबसाइट को बनाना है, मेंटेन करना है, डेवलप करना है, ठीक है ना। तो वेबसाइट बेस्ड इजी है, कोई भी कर सकता है, इसके लिए कॉस्टिंग ज्यादा है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर बेस्ड है, कोडिंग स्किल रिक्वायर्ड है, लिमिटेड लोग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका कॉस्टिंग बिल्कुल कम है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो वेबसाइट आप बना सकते हो। बट अगेन आपको होस्टिंग के लिए, डोमेन नेम के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, राइट। और उसको भी कैसे फ्री में लेना है मैं आपको अगले कुछ सेशंस में इसको समझाऊंगा। अगर अभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि किस तरीके से काम करता है आपका होस्टिंग, डोमेन नेम और सब चीजें, ठीक है ना। समझ लीजिए आप सपोज यू वांट टू बिल्ड अ हाउस, समझ लीजिए आपको घर बनाना है, राइट। आपको आपका घर बनाना है फ्रॉम दी स्क्रैच, जीरो से बनाना है आपको आपका घर, राइट। तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले जो है वो जमीन खरीदी करेंगे, जमीन लेंगे, राइट। तो समझ लीजिए जमीन मतलब कि आपका जो है वो होस्टिंग है, ठीक है ना, जहाँ पे आप आपका घर बना रहे हो, जमीन क्या है आपकी, होस्टिंग है, राइट। उसके बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर करेंगे, राइट। आपके प्रॉपर्टी को आप क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। जस्ट अ सेकंड, पहले तो आपने होस्टिंग कर लिया, राइट, मतलब आपने जमीन खरीदी की, घर बनाना है तो आपको, उसके बाद आपको जमीन खरीदी करने में उसको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको आपके नाम से, आपके घर का जो भी नाम रहेगा उस नाम को आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। मतलब कि क्या है आपका ये डोमेन नेम है, आपके नाम को रजिस्टर किया आपने, रजिस्टर नेम ऑफ योर प्रॉपर्टी, डोमेन नेम। और उसके बाद जो है आपको एक इंजीनियर को हायर करना पड़ेगा, बराबर है, घर बनाने के लिए। तो आपके इंजीनियर्स कौन है वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट बिल्डर से या वेबसाइट सॉफ्टवेयर से जो आपको वेबसाइट बिल्ड करके देंगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल वे से मैंने समझा दिया आपको कि जमीन है जहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी आपने रजिस्टर की पहले, फिर जमीन जमीन ले ली पहले, प्रॉपर्टी रजिस्टर की, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो आपका इंजीनियर, आपके वर्कर्स, आपका वेबसाइट बिल्डर आपका घर बनाएंगे, आपकी वेबसाइट बनेगी, राइट। तो आई होप दैट के ये एग्जांपल आपको आसानी से समझ में आ गया, राइट। सो इन अ सिंपल वे, अब अगर आप ये समझ लीजिए कि आपको कोडिंग भी सीखना है, राइट, कोडिंग में भी बनाना है, और आपको जो है वो थोड़ा सा फास्ट भी काम करना है वेबसाइट बनाने के अंदर, वेबसाइट आपको फास्ट बनाना है, इजी वे से बनाना है, और डिजाइनिंग पे ज्यादा काम करना है ना कि कोडिंग के ऊपर, राइट। वेबसाइट डिजाइनिंग पे ज्यादा काम करना है ना कि कोडिंग के ऊपर। तो आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, मिडल वे निकालना पड़ेगा। और नेक्स्ट चीज रहेगी वो सस्ता भी रहे, बराबर है। जैसे मैंने बताया कि वेब बेस्ड जो है वो महंगे हैं, दे आर टू मच कॉस्टली फॉर यू, एंड वेब बेस्ड और ऑफलाइन जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो है वो सस्ते हैं। सो बीच का रास्ता है आपके लिए
वर्डप्रेस। क्या है वर्डप्रेस? अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज एक्चुअली अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। वर्डप्रेस क्या है? ब्लॉगिंग वेबसाइट। आपने ब्लॉग के बारे में पढ़ा होगा। ब्लॉग्स के अंदर क्या रहते हैं? अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आर्टिकल्स रहते हैं बेसिकली, ठीक है ना। अभी यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग का कंसेप्ट है, VLOG, ब्लॉग का कंसेप्ट है, राइट। बट यहाँ पे क्या है? ब्लॉग है। तो वर्डप्रेस वाज बेसिकली यूज्ड फॉर ब्लॉगिंग पर्पस। बट वर्डप्रेस के अंदर आप आपके हाई एंड के एडवांस लेवल वेबसाइट्स बना सकते हैं। कैसे बनाना है हम देखते हैं। क्या टाइप के वेबसाइट्स आप बना सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी, राइट। फॉर एग्जांपल वेबसाइट के टाइप्स रहते हैं, जैसे कि है इंफॉर्मेशनल वेबसाइट। फॉर एग्जांपल nationalgeographic.com, नेशनल ज्योग्राफिक आप चैनल देखते हैं तो उनकी वेबसाइट भी है जहाँ पर वो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद अलग अलग कंपनीज के वेबसाइट्स रहते हैं, जो कंपनीज को मैंडेटरी रहता है, कंपल्सरी रहता है उनकी वेबसाइट है, राइट। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे जो है वो आपकी PCL इंडिया या आपकी प्रिसीजन कैम्पशाफ्ट्स की वेबसाइट है। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। मेरी स्क्रीन दिख रही है? थोड़ा थंब दिखाओ मेरे को सभी लोग। स्क्रीन दिख रही है मेरे को मेरी? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ऑलराइट, थैंक यू। तो दिख रही है स्क्रीन। सो कंपनीज की वेबसाइट्स रहती हैं, सर्च इंजिन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल google.com ये क्या है? सर्च इंजिन, राइट। सर्च इंजिन है, यहाँ पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालो वेबसाइट्स की, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वेबसाइट्स के अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी गूगल के अंदर आपको मिल जाती है, राइट। सो google.com। उसके बाद रहते हैं एजुकेशनल वेबसाइट्स। एजुकेशनल वेबसाइट्स जैसे कि कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट है, जैसे हमारी वेबसाइट है www.asadullahkhanschool.org, राइट। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल वेबसाइट। उसके बाद है आपके ई कॉमर्स, आज के दौर में जो है बहुत पॉपुलर चलती है, राइट। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, राइट। बहुत सारे वेबसाइट्स है ई कॉमर्स में चलते हैं। ई कॉमर्स मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग के जो वेबसाइट्स है, ये सारे वेबसाइट। उसके बाद एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब। और उसके बाद अलग अलग मूवीज के लिए वेबसाइट है और म्यूजिक के लिए वेबसाइट्स है, राइट। सो एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ you can get it online and you can get it on internet because of the websites। कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आपको वेबसाइट मिलेगी ही मिलेगी। इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है आपके वेबसाइट्स का, ठीक है ना। अगर आप कोई बेसिक सी बेसिक चीज ले लो कि मेरे को ये चीज किस तरीके से करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को कंप्यूटर कैसे यूज करना है, मेरे को मोबाइल कैसे यूज करना है, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, सो फ्रॉम द बेसिक टू बेसिक जो है वो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे वेबसाइट्स के थ्रू इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हो जाती है। सो दैट इज द पावर ऑफ वेबसाइट्स एंड ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक आपका इंस्टाग्राम रहे, फेसबुक रहे, है ना, यूट्यूब रहे। तो ये सारे जो है वो वेबसाइट्स वेब बेस्ड एप्लीकेशंस है बेसिकली, ठीक है ना। मोबाइल के एप्लीकेशन पे अगर रहेंगे फिर भी वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, मतलब कि वो एक्चुअली वेबसाइट है जिसको कन्वर्ट किया गया है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, राइट। दैट इज कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस। तो वो भी जो है वो आपके पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द वेबसाइट्स। सो इसको डेवलप करना और इसका एक डेवलपर बनना आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब के एक अचीवमेंट हो सकता है आपके करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, राइट। सो आप देखेंगे हाउ एग्जैक्टली द वेबसाइट वर्क्स। आप जब किसी एक वेबसाइट का एड्रेस ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर क्या है आपका? गूगल क्रोम, राइट, या फिर मोजिला फायरफॉक्स, या फिर यूसी ब्राउजर, या फिर कोई और ओपेरा वगैरह जो रहते हैं, इनको बोलते हैं वेब ब्राउजर्स। जहाँ जहाँ पे जाके आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वेब ब्राउजर्स, राइट। जब भी आप वेब ब्राउजर के अंदर किसी एक वेबसाइट का एड्रेस डालते हो और क्लिक करते हो तो एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। मतलब बैक एंड में क्या होता है, आपको तो इमीडिएट एक विद इन सेकंड आपको रिजल्ट सामने आ जाता है, राइट। मतलब वेबसाइट का जो भी पेज रहता है वो सामने आ जाता है। बट एग्जैक्टली क्या होता है, उसके पीछे का फंक्शनिंग क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जानते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि आप यूजर हैं, राइट, यू आर यूजर। आपने क्लिक किया एक वेबसाइट के ऊपर, ब्राउजर पे आप गए, ब्राउजर पे जाने के बाद आपने वेबसाइट के ऊपर क्लिक एंटर किया, टाइप किया और एंटर किया, मतलब कि आपने एक रिक्वेस्ट भेजी,
आपने एंटर किया मतलब आपने रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट जाती कहाँ पे है? डीएनएस सर्वर के ऊपर। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम मतलब आपके इस नाम से, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक नाम वेबसाइट दिया है, ये नाम रजिस्टर अगर है आपका, समझ लीजिए मैंने बताया आपको कि GoDaddy के ऊपर, बराबर है, हमने GoDaddy से परचेस किया है, तो GoDaddy के ऊपर जो है वो पहले तो जाता है आपका ये रिक्वेस्ट GoDaddy को जाता है, उनके डोमेन नेम सर्वर पे जाता है, राइट। डोमेन नेम सर्वर क्या करता है? इसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये वेबसाइट जो है वो मेरे सर्वर पर ही अवेलेबल है, इसके फाइल्स जो है वो मेरे सर्वर पर ही अवेलेबल है। उसके बाद वो फाइल जाती है वहां से बैकएंड सर्वर के ऊपर, मतलब वो सर्वर जहां पे आपने एज ए डेवलपर, एज ए डिजाइनर आपने फाइल स्टोर करके रखी है, आपने फाइल स्टोर करके रखी है, राइट। ये चीज जाती है फिर आपकी रिक्वेस्ट उस सर्वर के ऊपर, और वहां से जो है वो जो भी रिक्वायर्ड आपका जो है पेज है, वो पेज ढूंढ के आपको रिस्पॉन्स मिलता है यहाँ पे, ये आपकी वेबसाइट। आपको दिखता है इतना ही फंक्शन है, आपने यूजर है, आपने ब्राउजर में रिक्वेस्ट भेजा और आपको ये वाला पेज दिख गया है, बट बैकएंड पे जो है वो इतना प्रोसेस होता है, और ये सब होता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ये होता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, राइट। तो still I am getting some messages that we can't see your screen, so I just wanted to confirm from my Zoom meeting participants, can you see my screen? Just give me a thumb, thumb दिखाओ, thumb बेटा। Okay, 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 good, okay, thank you। All right, सो इस तरीके से जो है वो आपका एक, जब भी आप एक वेबसाइट पे क्लिक करते हो, जब भी एक वेबसाइट पे आप एंटर करते हो ब्राउजर के अंदर, आपको इस तरीके से सारा प्रोसेसिंग इसका होता है, राइट। अभी लास्ट चीज और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए एज अ वेबसाइट डिजाइनर, एज अ वेबसाइट डेवलपर, अभी जब आप मेरे साथ काम करेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, तब आपको दोनों भी बनना है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो है वो बीच का रास्ता चुने, राइट। आपको वेबसाइट डेवलपर भी बनना है, आपको वेबसाइट डिजाइनर भी बनना है, राइट। तो इसके लिए जो है वो आपको ए पार्ट की इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है। हाउ टू कनेक्ट वेबसाइट टू इंटरनेट। आपके वेबसाइट को इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करें? आपके वेबसाइट को, आपकी जो वेबसाइट आपने बनाए बनाए जो भी फाइल्स बनाए, उसको इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करेंगे? पहले तो जो है वो आप आपके वेब पेजेस क्रिएट करोगे HTML के अंदर, CSS के अंदर, या किसी वेबसाइट बिल्डर के अंदर, जैसे कि वर्डप्रेस है, जैसे कि विक्स है। आप आपके वेब पेजेस क्या करोगे? आप वेब पेजेस क्रिएट करोगे, मतलब उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आप डालोगे, कंटेंट डालोगे, डिजाइनिंग करोगे, कलर्स करोगे, फोटोज डालोगे, वीडियोस डालोगे, सारी इंफॉर्मेशन डाल के आप वेब पेजेस क्रिएट करोगे। उस सारे वेब पेजेस का जो फाइल रहेगा, जो एक फाइल बनेगा, वो फाइल जो है वो आपको सेकंड चीज करना है, अपलोड करना है होस्टिंग सर्वर के ऊपर, होस्टिंग सर्वर के ऊपर, ठीक है ना। उसके बाद जो है आपको नेसेसरी रिकॉर्ड्स जो है वो डीएनएस सर्वर के अंदर ऐड करना है। आपका जो आप जो पेजेस सर्वर पे आप होस्टिंग सर्वर पे अपलोड करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने GoDaddy से डोमेन लिया है, और GoDaddy से ही जो है वो आपने दोनों चीजें एक ही होस्टिंग के लिए आपका अलग लॉगिन आईडी पासवर्ड रहेगा, और डीएनएस सर्वर मतलब आपके डोमेन नेम से छेड़खानी करने के लिए, या फिर डोमेन नेम को चेंज करने के लिए, या फिर उसके अंदर कुछ जरूरी जो डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं, इनको ऐड करने के लिए जो है आपको ये लगेगा। जस्ट अ सेकंड, ओके, होल्ड अ सेकंड। Just a second.
चलो, ओके, लेट द Zoom participants join the meeting again. Zoom participants वापस मीटिंग ज्वाइन करना है. Okay, all right. I think all of you have joined. Can you hear me? Give me a thumb. Okay. Hello, can you hear me, all of you? Yes, give me a thumb if you can see my screen. If you can see my screen, give me a thumb, please. Okay, good, good, good. All right, we will conclude in a few minutes only. This is somewhere important part. All right. So, आपको जो है वो नेसेसरी डीएनएस रिकॉर्ड्स जो है, फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के डीएनएस रिकॉर्ड रहते हैं, जैसे कि है ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, ठीक है ना, सी नेम रिकॉर्ड. उसके बाद आपका रहता है एमएक्स रिकॉर्ड्स, जो ईमेल एड्रेस की ईमेल आईडीज के लिए काम आता है, ईमेल एड्रेसेस के लिए काम आता है, राइट. तो ऐसे अलग अलग रिकॉर्ड जो है वो आपको सेट करना पड़ता है ताकि आपका डोमेन जो है आपके इस होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट हो जाए. आपका डोमेन जब आपके होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा तब जाके आप मतलब ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस अच्छे से काम करेगा. मतलब अगर डीएनएस सर्वर को ही नहीं पता है कि ये सर्वर के फाइल्स कहाँ पे है तो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, राइट. वेबसाइट ओपन नहीं होगी. तो यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाएगी डीएनएस सर्वर तक. अगर डीएनएस सर्वर में आपने अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स ऐड किए, ए रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, डोमेन रिकॉर्ड्स, ये सारे ऐड करके रखे हैं अच्छे से और सही रिकॉर्ड्स ऐड किए, तो फिर वो यहाँ से आगे आपके रिक्वेस्ट को भेजेगा सर्वर की तरफ और वहां से वो फाइल जो पेजेस है वो वहां से पिक करके आपको वेबसाइट दिखाएगा. तो इसके लिए जो है वो ये लास्ट प्रोसेस जो है वो सेकंड लास्ट ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव आपको दिखाई देगी. तो ये प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्टेज है और इस स्टेज को जो है वो हम पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं. मतलब कि जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे तो बनाने से पहले ही हम सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे ताकि आप जब भी आपके वेबसाइट का ट्रायल देखेंगे, प्रीव्यू देखेंगे, सो यू विल बी एबल टू सी द वेबसाइट क्लियरली एंड यू कैन सी द चेंजेस यू हैव मेड while publishing or while creating the website, right. तो इसके लिए इस प्रोसेस को पहले करके लेना है. तो इंपॉर्टेंट स्टेज है एंटायर प्रोसेस का आपका, हाउ टू कनेक्ट वेबसाइट टू इंटरनेट. वेबसाइट को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट करना है, इसके लिए आपको पहले डोमेन नेम को आपके आपके होस्टिंग सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो आपके वेब पेजेस को जो है वो अपलोड करना पड़ेगा आपके होस्टिंग सर्वर के ऊपर एंड देन योर वेबसाइट विल गेट ऑनलाइन, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू पीपल, ठीक है ना. सो करियर्स क्या है वेबसाइट इंडस्ट्री के अंदर. जैसे आपको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, दिस कोविड, नंबर ऑफ बिजनेसेस आर रनिंग ऑनलाइन, नंबर ऑफ बिजनेसेस आर रनिंग ऑन अ वर्चुअल लेवल, on a website based, application based platforms, right. And so because of that there is a huge demand of website developers in recent months. जैसे आप देख रहे हैं कि जब से अनलॉक हुआ है वेबसाइट डेवलपर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन, द जॉब इज इन द डिमांड. सो आप सही मौके पर सही जगह पर है. आई फील दैट सैलरी पैकेजेस क्या रहते हैं वेबसाइट इंडस्ट्री के अंदर, आपको अलग अलग जॉब ऑफर्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपर्स, इनकी सैलरी रहती है 3 लाख से लेके 5 लाख पर एनम हर साल, मतलब 25,000 से लेके 40,000 पर मंथ तक, ठीक है ना, इनकी सैलरी रहती है. वेबसाइट डिजाइनर्स जो है जो पूरा आउटलेट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, सारा जो क्रिएटिव काम जो रहता है वेबसाइट डिजाइनर्स का, यूआई डेवलप करना, यूजर इंटरफेस डेवलप करना, ये सारा काम ये लोग करते हैं. 2.5 लाख से 4 लाख तक का इनको पैकेज रहता है, मतलब कि 20,000 महीना से लेके आपका
30-35 हज़ार महीना तक का इनको इनिशियल लेवल पे मिल सकता है एज पर योर क्वालिफिकेशन एंड योर एक्सपीरियंस। ठीक है ना, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट्स है और आपके पास जो है वो प्रॉपर इसका इसके स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स आपने अच्छे से बनाए हैं, तो आपको इस तरीके से इस टाइप का पैकेज मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेबसाइट ऑथर्स। ठीक है ना, तो इनके लिए जो है वो बेसिकली टेक्निकल स्किल्स का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, बट वेबसाइट में क्या क्या कंटेंट क्या टाइप से बनाते हैं, जो लैंग्वेज रहती है, जो इंग्लिश यूज करते हैं या फिर हिंदी में कोई वेबसाइट है या कोई और लैंग्वेज में वेबसाइट है, तो उस लैंग्वेज को किस तरीके से यूज करना है ताकि जो व्यूअर है, वेबसाइट का जो विजिटर है, वो आपके वेबसाइट को जल्द से जल्द छोड़ के ना जाए। ठीक है ना, आपने एक वेबसाइट पर विजिट किए, 5 मिनट रुके वहां पे, वेबसाइट आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं मिली, अच्छे से डेटा नहीं मिला, तो इतना सारा डिजाइनिंग वगैरह सब करके भी आपकी वेबसाइट फेल हो जाएगी। तो वेबसाइट ऑथर का काम ये रहता है, वेबसाइट ऑथर्स का काम ये है कि आपको जो है वो अच्छे से अच्छा, प्रॉपर और अप टू द मार्क कंटेंट बना के दे। इनके लिए भी जो है वो 2.5 से 5 लाख तक का पैकेज रहता है। अगर आप अच्छे राइटर है, जो आप ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर अगर आप कोई और कंटेंट वेबसाइट के ऊपर लिखते हैं, तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। आपको जो है वो 25,000 से लेके लगभग 40-50 हज़ार मंथ तक के सैलरीज यहाँ पे ऑफर की जा सकती है, राइट। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक चीज मेंशन नहीं की, वो है आपके नेटवर्किंग के जो जॉब्स है, नेटवर्किंग के जो काम है, इसके रिलेटेड। नेटवर्किंग के लिए बेसिकली आपको हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का कोर्स अगर आप करते हैं, तो जो ये वेबसाइट्स है, बड़े बड़े वेबसाइट जो है, गूगल है, फेसबुक है, इनके सर्वर्स को हैंडल करना आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। आप इन सर्वर्स को हैंडल कर सकते हैं और इस हिसाब से आपको जॉब भी मिल सकता है। अगर आप किसी अच्छे कंपनी का सर्टिफिकेशन लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिस्को एक कंपनी है जिनका अगर आप हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का अगर आप ट्रेनिंग करते हो, कोर्स करते हो, तो आपको जो है वो बड़े बड़े जो गेमिंग कंपनीज है और जो बड़े बड़े जो डेटा सर्वर्स है, गूगल का रहे या फेसबुक का रहे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारा डेटा आता रहता है, तो इसका नेटवर्किंग करना, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत सारा अच्छा पैसा भी वहाँ पे उनको ऑफर किया जाता है। तो इसके लिए जो है वो आपको वहां पर भी अच्छे चांसेस आपके लिए अवेलेबल है, राइट। सो इसी को सामने रखते हुए वी हैव डिसाइडेड इन खान कैंपस कि आपको जो है वो स्किल्स के ट्रेनिंग मिलने चाहिए, आपको स्किल बेस्ड जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलने चाहिए। तो जो अभी हमारे साथ अभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं आपके इस लेसन सेशन के अंदर, जो आपके कैंपस के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इंफॉर्मेशन रहेगी, और जो बाहर से जो ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि वेबसाइट डिजाइनिंग, ऐप डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और टैली, ये सारे कोर्सेज अपने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2 साल के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करा के लेंगे। उसका सर्टिफिकेशन भी आपको दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें ऑफलाइन में, मतलब कंप्यूटर लैब्स के अंदर कराई जाएंगी खान कैंपस सोलापुर के अंदर, और पॉसिबल है मुमरा कैंपस के अंदर ऑनलाइन तरीके से इन सारे कोर्सेज को रन किया जाएगा इंशाल्लाह। तो आई होप दैट यू हैव फाइंड दिस सेमिनार यूजफुल। हमने आज बस शुरुआत की है। जो पार्टिसिपेंट्स आउट ऑफ खान कैंपस है, मतलब कि जो जिनका एडमिशन यहाँ पे नहीं है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं इन कोर्सेज को, वो यहाँ पे दिए गए हुए नंबर्स को आप नोट डाउन करके लीजिए, या फिर ऑफिस का एड्रेस है, इस एड्रेस पे आके आप मुलाकात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए भी कुछ ना कुछ हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप भी ज्वाइन कर सके इन कोर्सेज को। I hope that you have find this useful and information for website designing. अगर कोई questions है तो अभी मैं questions लूंगा। If you have any questions, you can raise your hand. Hands raise करना है, thumb नहीं दिखाना है मेरे को, hand raise करना है ताकि मैं questions ले सकूँ। हमारे Zoom participants जो join किए हैं उनके लिए basically। अगर कोई question है, hand raise करना है। Okay. Faisal, yeah, I'm unmuting you, Faisal. You can ask your question. ओके, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ पहले तो आपको ओके, ऑल राइट। सो
Faisal, yes. Any question? No. Moin Hirapuri. Moin, any question? Okay. Shaista Naz. Any questions from your side? Okay, तो मैं lower करता हूँ hand इनके सभी को. All right. Any questions from Zoom meeting? All right. Okay, we will shortly. We will again organize, again arrange in the next session of website designing. I hope you find this useful. Uh, Thank you very much for joining me. This is Akhtar Mullah signing off. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.